તમે મળવા તેનાવો શા માટે? તમે મળવા તેનાવો શા માટે? તમે રમવા તેનાવો શા માટે? તમે રમવા તેનાવો શા માટે? ના આવો તો નંદજીની આણ રમવા, આવો સુંદર વર સાંભળ્યા. આવો તો નંદજીની આડ રમવા, આવો સુધીર વર્ષા મળ્યા. એવા વાયા ને વાદળો મટ્યા. એવા વાયા ને વાદળ ઉમટ્યા. તમે ગોકુળમાં ગોધન ચારંતા. તમે ગોકુળમાં ગોધન ચારંતા. તમે ગોકુળમાં ગોધન ચારંતા. તમે ગોકુળમાં ગોધન ચારંતા. તમે છોરે સદાયના ચોર રમવા, આવો સુંદર વર સાંભળ્યા. એવા વાયા ને વાદળ ઉમટ્યા. ઠાકોરના ઠાકોર તારા બંધ દરવાજા. ઠાકોરના ઠાકોર તારા બંધ દરવાજા ખોલ. ઠાકોરના ઠાકોર તારા બંધ દરવાજા ખોલ. ઠાકોરના ઠાકોર તારા બંધ દરવાજા ખોલ. હે જય રણ છોડ માખણ ચોર, જય રણ છોડ માખણ ચોર, તારો ગલીએ ગલીએ શોર. દુનિયાનો દાતાર બની તું કે
जाऊ जड़े भाई बा मारे हई गरकन माई जाऊ जड़े भाई बा जड़े भाई बा मारे हई गरकन माई जाऊ जड़े भाई बा अनुडा मुरली वाला रे वालीडा मुरली वाला रे कानुडा अनुडा मुरली वाला रे वालीडा मुरली वाला रे हमें जो रंग न काला रे वालीडा मुरली वाला रे हमें जो रंग न काला हमें जो रंग न काला रंग न काला रंग न काला हमें जो रंग न काला रे वालीडा मुरली वाला अनुडा मुरली वाला रे वालीडा मुरली वाला रे अनुडा मुरली वाला रे वालीडा मुरली वाला रे हमें जशोदाना जाया रे वालीडा मुरली वाला रे हमें जशोदाना जाया रे कानुडा मुरली वाला रे हमें छोड़ नंदना प्यारा रे वालीडा मुरली वाला रे हमें छोड़ रंग न काला रंग न काला रंग न काला हमें छोड़ रंग न काला रे वालीडा मुरली वाला रे हमें छोड़ रंग न काला रे वालीडा मुरली वाला रे राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा ओ राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा राधा तेरा शाम हमने तड़ाव में देखा तेरा शाम हमने तड़ाव में देखा राधा तेरा शाम हमने तड़ाव में देखा तेरा शाम हमने तड़ाव में देखा राधे 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 सुभान बिनारी भक्तों की प्यारी हमारी प्यारी सबकी प्यारी दास दुलारी सिखों की प्यारी वर मन में काल वन में जीवन जी में का लोटा राधे 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 कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 2 મિનિટમાં
કથાને વિરામ આપું, પછી આરતી કરશું, પણ પહેલા કથાને વિરામ આપી દઉં. તો આજની કથાને આપણે વિરામ તરફ લઈ જઈએ. આવતીકાલે પુનઃ 11 વાગે કથામાં પધારીએ સૌ. અને અત્યારે પાછા બધાએ બેસવાનો છે. પૂજ્ય બાપુ પરમ શ્રદ્ધેય શ્રી દત્ત શરણાનંદજી મહારાજ ઉપસ્થિત થવાના છે. એમના આશીર્વાદ આપણે બધાએ ગ્રહણ કરવાના છે. શ્રી ડુંગરારામ પુરોહિત महामंत्री श्री महावीर हनुमान नंदी गौशाला गोलासन विश्व की सबसे बड़ी नंदी गौशाला पथमेड़ा का परिचय है ये, क्योंकि राजस्थान में ये सबसे बड़ी है. तो पूज्य बापू आवे छे तो આપણે સૌ આશીર્વાદ ગ્રહણ કરવા માટે બેઠા રહીએ. તો આજની કથાને આપણે વિરામ તરફ લઈએ એની પહેલા 2 મિનિટ हरे राम 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 सीताराम राम राम 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 राम 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 बोलिए श्री द्वारिकाधीश संगी श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सुरभि गौ मैया की श्री नंदीश्वर भगवान की श्री शीतला मैया की श्री सद्गुरु भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर जय जय श्री राधे 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय આજના પાંચમા દિવસે 51,000 રૂપિયા ભારુભાઈ ભગાભાઈ પરમાર આપે છે. એમનું સન્માન પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી કરે છે. દીનદયાલજી મહારાજ ગૌધામ પથમેરાથી આજે આપણા મહેમાન બન્યા છે. અને સાથે ગોળાસણ નંદીશાળાના મહામંત્રી શ્રી ડુંગરારામજી પુરોહિત સાહેબ આવ્યા છે. આપણે
એમને સ્વીકારીએ, અહીંયા આમનું સન્માન કરીએ છીએ. અને હું ડુંગરા રામજી પુરોહિતને વિનંતી કરું કે ટૂંકમાં, અને સજ્જનો, મારી માતાઓ, બહેનો બેસજો, પૂજ્ય બાપુ પધારે ત્યાં સુધી આપણે હજુ જે દાતાઓની યાદી છે એ મારે વાંચવાની છે. જે મહેમાનો બહારથી પધાર્યા છે એ દરેકને હૃદયથી આવકારું છું. હા, સર્વને નમ્ર વિનંતી છે કે પરમ પૂજ્ય પથમેડા મહારાજજી પધારે ત્યારે પોતાનો મોબાઈલ બંધ રાખે, કોઈ મોબાઈલનો ઉપયોગ ન કરે, કોઈ ફોટો ન પાડે, કોઈ ચરણ સ્પર્શ ન કરે. આ વસ્તુને ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. બાપજીનું કોઈ પણ જાતનું તકલીફ થાય એવું કામ નહીં કરવાનું ભાઈ. કોઈએ ચરણ સ્પર્શ કરવાનો નથી અને કોઈએ ફોટો લેવાનો નથી. આપણે સૌ સજ્જનોને એક નમ્ર વિનંતી છે કે તમે તપ કરવા માટે આવ્યા છો અને પૂજ્ય બાપુ પધારે ત્યાં સુધી આપણે બધાએ તપ કરવું છે. શાંતિથી બેસજો મારી માતાઓ, બહેનો, મારા ભાઈઓ. હું પુરોહિત ડુંગરા રામજીને વિનંતી કરીશ કે આવે માઇક ઉપર અને આપણને ગૌ માતા વિશે, નંદી વિશે વાતો કરશે. આદરણીય શ્રી ડુંગરા રામજી પુરોહિત. व्यासपीठ की वंदना, बड़ों को प्रणाम, सबको राम राम सा श्री हरि के नाम. व्यासपीठ पर विराजित पूज्य श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन. साथ ही परम पूज्य संत श्री दीनदयाल जी महाराज, श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा और उनके साथ पधारे हुए सभी पथमेड़ा गौशालाओं के ट्रस्टियों और समता, क्षमता और ममता की त्रिवेणी मातृशक्ति को मैं नमन करता हूं. साथ ही आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि नीम चाहे हो कड़वा पर चंदन से कम नहीं, और तड़ाव चाहे हो छोटा पर आज तो वृंदावन से कम नहीं है. जोरदार ताली. जय हो. दत्त शरणानंद जी आंखों के तारे, ये गऊओं के रखवारे, सृष्टि पर सानी नहीं इनका, दुनिया उनके पांव पखारे. ऐसे महान संत का बहुत यथाशीघ्र हमारे बीच में आगमन होने वाला है और उनके मुखारविंद से हम सबको वाणी का प्रसाद भी मिलना है. इसलिए सभी धर्म प्रेमी गोभक्तों से मेरी प्रार्थना रहेगी कि परम पूज्य संत श्री गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज यथाशीघ्र पधारने वाले हैं. इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आपको थोड़ी देर के लिए विराजना है. प्रसाद किसी का बाकी है तो लेकर आपको पुनः यथोचित स्थान पर विराजने का मैं निवेदन कर रहा हूं. कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो हमें लंबे समय तक याद रहती है. कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो चिर समय तक हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, और कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पहुंचने मात्र से मन व आत्मा दोनों ही आनंद की अनुभूति करते हैं. ऐसे ही ये पवित्र धाम शीतला माता गोनंदी तीर्थ पर आप सब लोग पधारे हो. अपने आप आत्मा आनंद का अनुभूति करती है. इस समय जगत में दो प्रक्रियाएं हो रही है. विज्ञान व्यक्ति को बाहर से सुधारना चाहता है, जबकि धर्म व्यक्ति को बाहरी शुद्धि के साथ साथ अंदर की शुद्धि चाहता है. देखो, दुनिया का कोई भी कानून, दुनिया की कोई भी सेना, दुनिया की कोई भी पुलिस व्यक्ति के चरित्र को नहीं गढ़ सकती. व्यक्ति के अगर चरित्र को गढ़ना है तो केवल और केवल धर्म ही सक्षम है, और धर्म इस तरह के संत महात्माओं की अमृतमयी वाणी से ही हमको प्राप्त होता है. इसलिए आप सबसे निवेदन है, इस समय 3 प्रकार की आत्माएं हैं. पहली है जीवात्मा, दूसरी है महात्मा और तीसरी है परमात्मा. ये महात्मा बीच की कड़ी है और संत ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं. तो महात्मा हम जीवात्माओं की व्यथाओं को परमात्मा तक पहुंचाते हैं, और परमात्मा का आशीर्वाद महात्मा के माध्यम से हम जीवात्माओं को मिलता है. इसलिए संत श्री के चरणों में पुनः पुनः वंदन और अभिनंदन. वैसे तन का आधार है नाश्ता और मन का आधार है आस्था. न मिलेगा नाश्ता तो न सूझेगा रास्ता, और न रही आस्था तो न रहेगा वास्ता. हमारे में अगर आस्था नहीं रही तो निश्चित रूप से हमारा वास्ता नहीं रहेगा. 500 वर्षों के
संघर्षों के बाद हमें श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव देखने का कुछ को प्रत्यक्ष और कुछ को अप्रत्यक्ष लाभ मिला। ये आपके संघर्ष का परिणाम है। आप निरंतर लगे रहे, तब जाकर ये महान कार्य संपन्न हो चुका है। इसी तरह से गाय दया की देवी है, गाय प्रेम की प्रतिमा है, करुणा की कविता है, स्नेह की सरिता है, परोपकार का पर्वत है और ममता का महासागर है। उसमें सेवा रूपी स्नान करने का हमको स्वर्णिम अवसर जो गो नंदी तीर्थ धाम शीतल धाम माता के स्थान पर हमको मिलेगा। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। हम अनुभव से बात कर रहे हैं। जिस समय गोधाम पथमेड़ा की स्थापना हुई उस समय वहाँ इसी तरह का आपका जो निर्जर वन है ऐसा का ऐसा वन था, लेकिन आज पथमेड़ा कुण जान तो छोटकियो सो गांव और गो सेवा उपक्रम से चारों खूंट में नाम, आज चारों खूंट में पथमेड़ा का नाम है तो गो सेवा के कारण है। और ये तड़ाव का भी आज ये घोषणा हो जाती है। अभी यथाशीघ्र महाराज जी पधारेंगे और ऐसे संतों की उपस्थिति में ये जो गो नंदी तीर्थ है ये विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ होगा, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और गो माता से अपेक्षा करते हैं। आपसे मेरा निवेदन इतना है कि पूजा पुरुष की नहीं पुरुषार्थ की होती है, चर्चा चरित्र की नहीं चरितार्थ की होती है, और फल पाने के लिए सींचना पड़ता है जड़ को, और सराहना स्वार्थ की नहीं परमार्थ की होती है। आप लोग परमार्थ के पथ पर अग्रसर हैं। आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत बड़ा जो आयोजन किया है, इसलिए निसंदेह ये विश्व के लिए संदेश जाएगा और इस तरह की छोटी छोटी प्रयासों से बहुत बड़ा काम संपन्न होगा। गोधाम पथमेड़ा की मैं संक्षिप्त जानकारी, आप अच्छी तरह अधिकांश लोग गोधाम पथमेड़ा पधारे हुए हैं, सबको जानकारी है, फिर भी 2 मिनट में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि पथमेड़ा वो मनोरम भूमि है जहां पर श्री कृष्ण भगवान ने वृंदावन से द्वारिका जाते समय सृष्टि की सर्वोत्तम दुधारू सौम्यवान ऊर्जावान गोवंश को गोचारण के लिए चुना था। और 1200 वर्षों के अत्याचार जो गोवंश पर हो रहा था, उस अत्याचार को समाप्त करने के लिए 1993 में 8 गायें जो क्रूर कसाईयों से छुड़ाई गई थी, उन गायों के साथ इस रचनात्मक अभियान का शुभारंभ हुआ था। 2-3 वर्ष बाद लगभग 2003 में गोधाम पथमेड़ा में 2,84,000 गोवंश की सेवा आप सब लोगों के सहयोग से संपन्न हो गई थी। धीरे धीरे निरंतर गायें जब सुवृष्टि होती है तो किसानों को दी जाती है, फिर अकाल हो जाता है। ये तो राजस्थान है, वहाँ एकांतर अकाल पड़ता है। आप लोग तो भाग्यशाली हो, यहाँ पानी है। राजस्थान की भूमि में आप सब और जानते हैं कि रेगिस्तान है, वहाँ पानी की समस्या रहती थी, इसलिए अकाल एक वर्ष को छोड़कर दूसरे वर्ष पड़ जाता था। ऐसी स्थिति के बावजूद भी वहाँ 3-3 लाख गोवंश की सेवा हुई है। और साथ ही उसका परिणाम देखो, नहर नाचती आ गई, अब सींचेंगे खेत, और पानी के प्रताप से सोना होगी रेत। वो पथमेड़ा के प्रभाव से, गायों के पुण्य से उस रेगिस्तान में नर्मदा मैया की नहर आ गई, जिससे आज वहां धरती सोना उगल रही है। तो गो सेवा का अपरिमित परिणाम है। इसलिए आप सब जिस पथ पर चले हो, वह पथ बहुत हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायी और कल्याण करने वाला मार्ग है। सज्जनों, चंदन से वंदन शीतल होता है, योगी से उपयोगी होना अच्छा है, और अच्छे प्रभाव की बजाय अच्छा स्वभाव होना जरूरी है। इसलिए अच्छे स्वभाव के साथ, वंदन के साथ जो भी इस तरह का महान आयोजन यहाँ हो रहा है, आप श्रद्धापूर्वक इनसे सुने। और जिस प्रकार से गंगा स्नान से मन व आत्मा दोनों की, शरीर दोनों की शुद्धि होती है, ठीक उसी प्रकार ऐसे संतों के सत्संग सुनने से हमारा मन और आत्मा दोनों ही प्रफुल्लित होती है। और संतों के माध्यम से जो हमें ज्ञान मिलता है, उसे हमारी जो भावी पीढ़ी है, विशेषकर मातृशक्ति से मैं नमन करूंगा कि आपका बहुत बड़ा सहयोग है।
रत्ना जो न होवती तो राह दिखातो कौन, मानस लिख न पावतो तुलसी मरतो मौन। तुलसीदास जी अगर रत्ना न होती उसकी धर्म पत्नी तो मानस नहीं लिख पाता। इसलिए माताओं का धर्म के क्षेत्र में बहुत सहयोग है। इसलिए आपसे निवेदन है, आप गांवों में हो, काम कर रही हो, शहरों में तो काम बहुत कम है, लेकिन आप सारे घर का काम करने के बाद भी समय पर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारती हो। आपको कथा सुननी है और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के साथ आपकी गोद में जो भारत का भविष्य पल रहा है उसको सुसंस्कृत करने का काम माताओं का है। इसलिए मैं आपसे विशेष दया की भीख मांग रहा हूं कि हे माता, आप जाग जाओ। आपके जागने से ही सब कुछ होगा। मातृशक्ति अगर मजबूत रही तो निस्संदेह देश आगे बढ़ेगा और धर्म की रक्षा भी हो जाएगी। साथियों, अन्याय आज भी इतना ही ढीठ है जितना हस्तिनापुर में था। आज भी दुष्ट दुशासन चीर हरण को पूरे देश में दिन प्रतिदिन अपन समाचार सुनते हैं। आज भी अयोग्य लोग दुर्योधन की भांति राजभोग की कुचेष्टा कर रहे हैं। यदि आपने धर्म पथ थामे नहीं रखा तो ये सब दुर्योधन और दुशासन जैसे लोग कर्ण की भांति आपको अधर्म के मार्ग पर ले जाएंगे। इसलिए कथा में आना जरूरी है, सुनना जरूरी है, सतमार्ग अपनाना जरूरी है, संतों की सन्निधि जरूरी है और संतों के माध्यम से हमारा कल्याण होगा। इसमें कोई मीन मेख नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि गुण की पूजा वे जगत में, बाकी जूठी जोड़, कठे दाऊरा देवरा ठाकरड़ा सब ठोर। व्यक्ति के गुण की पूजा होगी, आप सहयोग करोगे, सेवा करोगे तो लोग आपको याद करेंगे। बाकी तो क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, कैशलेस आए थे, कैशलेस जाएंगे। कैशलेस जमना है। भगवान ने दो ही व्यवस्थाएं दी है, या तो दे के जाओ या छोड़ के जाओ। और वैसे कंजूस सबसे बड़ा दाता होता है, क्योंकि वो पूरे जीवन भर की कमाई औरों के लिए छोड़ जाता है, साथ तो व्यवस्था नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है, ऐसे आयोजनों में अभी घोषणाएं हो रही थी, संचालक जी घोषणा करने वाले थे। निवेदन है कि परम श्रद्धेय गो ऋषि जी पधारने वाले हैं, उनकी उपस्थिति में ये घोषणाएं, दाताओं की भी घोषणा होगी। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो पानी चरणामृत बन जाता है। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है तो व्यक्ति इंसान बन जाता है। इसलिए आपसे निवेदन, ये भक्ति के मार्ग से हम इंसान बनने का मार्ग जो यहाँ इस गो नंदी तीर्थ में आयोजित हो रहा है, आप उसका पूरा लाभ लें। अब मेरा दूसरा निवेदन और है कि अभी व्यसन की बहुत बड़ी बीमारी है। पुरुषों में व्यसन है